Hello everyone and assalamu alaikum. I hope everybody is doing great. Welcome back to my channel. So this is Tessie Nazar. I'm back again. बट आज जो हमारा टॉपिक है वो बाकी टॉपिक से थोड़ा सा हट के और थोड़ा सा डिफरेंट है. आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस ओवर हियर और आज मैं थोड़ा सा वो चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसको मैंने हासिल करने के लिए आई रियली स्ट्रगल्ड. एक पूरा साल हम मेहनत की. At the end of the day, Alhamdulillah, I got recommended by SSB. But ugly story, I'll tell you later. So today I'm going to discuss or I'm going to tell you guys that what is LCC, होता क्या है, कैसे affiliated है पाकिस्तान आर्मी से. बहुत से लोग आई नो ऑब्वियसली जाना भी चाहते हैं बिकॉज इंडक्शन अभी में इस साल जनवरी की प्रिलिमिनरी इंडक्शंस तो हो गई हुई हैं. नाउ दे आर ऑल वेटिंग फॉर देयर कॉल अप लेटर्स फॉर आईएसएसबी. बट अभी मैं पहले प्रिलिमिनरी जो हमारा है एवेलुएशन क्राइटेरिया उसकी बात करूँगी. जो हमारे पहले इनिशियल टेस्ट होते हैं उनकी बात करूँगी. एंड देन इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट आईएसएसबी, क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, those 5 days what you have to do don'ts, everything, and how you got and how can you will be able to अगर मैं कहना चाहूँगी इसको, कैसे तुम लोग अगर कामयाब होना चाहोगे. Just adding on my example, like when I went over there were 95 candidates. या आप उसको कह लो कि 95 students थे या 95 applicants थे. And out of those 95, only 25 got lucky who got recommended, and then next procedures goes on. So this is something, again, you need to be very 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 prepared for that. So वही preparation कैसे करनी, कहाँ से करनी है, I'll help you out. I will guide you guys. जितना मुझसे हो सका I'll let you know कि कैसे करनी है, किन किन एरियाज में, किन किन एजुकेशन की कैटेगरी में देर आर पोजेशंस. We will be discussing each and every detail in this video. So do like, subscribe, and share my video with your friends and fellows and your family. Also, this is something that's really close to my heart as well, because that's really a dream. कुछ ये ऐसा ड्रीम है जो कुछ लोगों का पूरा हो जाता है, कुछ लोग अगेन एंड अगेन ट्राई भी करते हैं बिकॉज यू डू हैव चांसेस. 3 दफा आप ट्राई कर सकते हो. बट अगेन दिस इज लाइक दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट what you need to do and how much prepare you need to be, कितनी preparation ज़रूरी होती है. So let's start our video that what is LCC. Basically, LCC stands for Lady Cadet Course. It's a procedure through which you can be inducted in Pakistan Army and will be commissioned directly as a captain. मैं थोड़ा इसका introduction करा दूँ. LCC होता है लेडी कैडेट कोर्स. लेडी कैडेट कोर्स जिस तरह इस साल अभी इट्स बीन देयर, अभी आया हुआ है बिकॉज जनवरी में उनके हुए हुए भी हैं टेस्ट. तो दिस ईयर दे हैड ऑलरेडी डन दिस प्रिलिमिनरी चल रहा है. उसके बाद दे आर वेटिंग फॉर देयर आईएसएसबी कॉल्स. अच्छा, सो बेसिकली एलसीसी पहले आर्मी में सिर्फ और सिर्फ मेल्स का होता था, बट देन दे प्लान कि नहीं, वी मस्ट हैव फीमेल in army as well. So through that उन्होंने ये शुरू किया. एंड नाउ माशाल्लाह दिस इज द 18th वन. दिस इज दिस ईयर जो हमारा कोर्स चल रहा है, जो कि मई में जाके तकरीबन उनका हो जाएगा इंशाल्लाह. सो दिस इज LCC 18. तो ये 18th बैच दे आर इंडक्टिंग. So उसके बाद directly you will be ranked as a captain. So this is how it goes. So let's see क्या करना है, क्या criteria है. So these are some of the basic eligibility criteria for applying. Number one, you need to have a minimum CGPA of 3 out of 4. पहले वाले जो categories में like previous years वो 2.5 तक भी ले लेते थे, but now they have like again जो standard practices, obviously it's going up. तो अब उन्होंने भी अपना criteria थोड़ा सा ऊपर कर दिया. Now they are not going for 2.5, they are taking 3. Then
That's effect in terms of like annual system, that's 60%. MPhil and MS will be given preference. अच्छा कुछ जगहों पे ये 2.5 भी mention है, तो like again I'll check that either it's 2.5 or 3, but चलो 2.5 to 3 is eligible. Very important thing, no third division or D grade or only अच्छा or only second division grade C throughout the academic career. उनको कोई थर्ड डिवीजन नहीं चाहिए, कोई डी ग्रेडर। अगर आपके पास आपका इंटर में, मैट्रिक में या आपको ओ ए लेवल्स में अगर इक्वेंसी निकाल के वो डी ग्रेड बन रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका सेकंड डिवीजन या सी ग्रेड मिल रहा है, वो भी एक, ओनली वन, एक से ज़्यादा अगर आपका आपने कहा मेरा इंटर में भी सी है और आपका मैट्रिक में भी सी है तो यू वोंट बी एलिजिबल। अगर आपका किसी एक चीज़ में सी है तो यू वुड बी एलिजिबल टू अप्लाई। Candidates only graduated from HEC and PEC recognized universities. Now, what is HEC? Higher Education Commission in Pakistan Engineering Council. अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है तो आप PEC सर्टिफाइड हो, PEC रजिस्टर्ड हो, आपके पास PEC रजिस्ट्रेशन का वो एक लेटर और सर्टिफिकेट भी होगा क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड उनके इंजीनियर हो। द सेम गोज विद आपने अगर पढ़ा जहाँ जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की हुई अपनी मास्टर्स की या बैचलर्स की, तो you need to be, that has to be recognized by higher education commission, because बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी खुल गई हुई हैं जो like they are not being HEC recognized, so that's why they are specifically mentioned. Candidates acquired qualification as private candidate is not eligible. अच्छा पाकिस्तान आर्मी में ये एक चीज़ है कि लाइक इफ़ यू हैव लाइक बहुत दफ़ा बहुत स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे ग्रेड्स होते हैं बिकॉज दे हैव डन प्राइवेटली, कि मैंने मे बी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से या मे बी एनीथिंग नॉट गोइंग फिजिकली ऑन कैंपस, ऑनलाइन कोई डिग्री ली हुई है। सो प्राइवेट कैंडिडेट हो, आपने कहीं फिजिकली या आपने टाइम नहीं हुआ हुआ या वैसे नहीं गए हुए, सो ये एक चीज़ है कि दे डोंट वांट इन दैट कैटेगरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इफ़ आर्मी योर पैशन, तो फिर आपको ये चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ आई विल लाइक टू ऐड ओवर हियर, आर्मी में इफ़ यू हैव डन, जिस तरह अभी ये तो हम लोग एलसीसी की बात कर रहे हैं, तो फिर भी अगर आपने अपना पीछे से कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट या डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज आर्मी में इवन इंटरमीडिएट लेवल पे भी प्री इंजीनियरिंग को प्रेफर किया जाता है। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग आर मोर प्रेफर्ड, लाइक दिस इज़ माई ओन, ये मेरा अपना एक ओपिनियन है, ये मेरा अपना, जितना मैंने इन सालों में, जितना मैंने खुद पढ़ाई करके, जितना मैंने खुद इसको स्टडी करके है रिसर्च, या जो मैं अपना खुद जाके मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, क्योंकि दे आस्क लाइक जो आपके फॉर्म्स से लेके इंटरव्यू से लेके आपके जितनी भी जगहों पे आपने मेंशन करना होता है, लाइक मैट्रिक, इंटर, आपका जो बैचलर्स की मार्क्स, लाइक they had a lot of impact. So those who are still pursuing or those who are still like wanted to pursue an army, I'll request pre-engineering background होना चाहिए। pre-engineering background आपको एक बहुत अच्छा advantage देता है। Okay, now some of the salient features of this, like जो चीज़ें होती हैं उसमें, definitely because it's LCC lady cadet course, so you need it's for females. Marital status, they don't want any candidate who is married. सिर्फ और सिर्फ गैर शादीशुदा लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी मंगनी हुई हुई, अगर आपने कुछ भी हुआ है, इट्स बेटर नॉट टू अप्लाई। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लाइफ बहुत चेंज है, ट्रेनिंग भी है। स्टिल मंगनी में भी शायद दे, बिकॉज इतना उसमें आप डिस्क्लोज नहीं होता, बिकॉज मैरिज में तो आपका निकाहनामा है, so that's different, but still for this they want unmarried females. Nationality, now all the citizens of Pakistan and domicile holders of Azad Kashmir, Gilgit Baltistan, they can apply for that. अगर किसी के पास डुअल नेशनैलिटी है तो उसको अपनी नेशनैलिटी सरेंडर करनी पड़ेगी अदर देन पाकिस्तानी। अगर फॉर एग्जांपल आई एम अ ब्रिटिश और आई एम अ जर्मन नेशनल, मेरे पास दोनों की नेशनैलिटी ही है, मैं जर्मन भी हूँ और मे बी आई एम लाइक पाकिस्तानी भी हूँ, तो आई हैव टू डिसाइड आइदर व्हेन आई एम अप्लाइंग फॉर दैट मुझे अपनी एक नेशनैलिटी को सरेंडर करना पड़ेगा।
All right. Now these are few of the things. These are the physical standards that are required by Pakistan Army. Number one is minimum height. Minimum height is 5 इंच से आप ऊपर हो, like 5 that is 152.4 सेंटीमीटर आपकी हाइट तकरीबन होनी चाहिए. इससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, दैट मीन्स यूर एलिजिबल. इससे कम है तो द चांसेस आर देयर आर नो चांसेस. Okay, now weight. Weight is something that's according to again your height. Like for example, my weight, my height is 5'8", for example, and my weight is like ideal weight आपको दिखना पड़ेगा आपका body mass index. You can Google it. आप अपने internet से search कर लो. There are different apps available. App download कर लो. iPhone या Android या if you have इससे कर लो. So you can have the category. Either you are underweight, either you are having a normal weight, either you are overweight, or either you are having a obesity. So all these parameters are really important. इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ख्याल रखते हुए इनको ज़रूर देखना कि आपका वेट है क्या, बिकॉज वेट मैटर्स अ लॉट. आपकी जितनी हाइट है, आपका वेट है, उससे आपका बॉडी मास इंडेक्स बनता है. Number third criteria is vision. Now, what is PAO? This vision. So, according to PAO, PAO stands for Pakistan Army Order. तो पाकिस्तान आर्मी ऑर्डर के मुताबिक आपका जो आई साइट या विजन है वो 11/82 होनी चाहिए. Now 11/82 का क्या मतलब है? Like it means that that person can see the test at 11 inches. कि आप 11 इंचेस तक देख सकते हो और एक नॉर्मल बंदा 82 इंचेस तक देख सकता है. तो आर्मी में अगर आप नॉर्मल 8 इंचेस तक देख सकते हो दूर, तो दैट मीन्स यूर एलिजिबल. नॉर्मल बंदा 82 तक देख सकता है, बट आप 11 तक भी देख सकते हो, तो दैट्स फाइन. ठीक है, तो यू आर एलिजिबल एज पर पाकिस्तान आर्मी ऑर्डर 11 इंचेस. All right. Now these are few of the categories जो अभी which are being like offered. ये अभी 2021 की मैं बात कर रही हूँ जो अभी इस साल ऑफर हुई हैं. हर साल डिफरेंट ऑफर होती हैं, हर साल क्राइटेरिया डिफरेंट होता है. इस साल जो उन्होंने ऑफर की हैं वो इन कोर में ऑफर हुई हैं पोजीशंस, जिसमें स्टार्टिंग विद नंबर 1 इंजीनियर कोर है, जिसमें उनको BE दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और MS मास्टर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, जियो इंफॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, ये हमें इंजीनियर्स कोर में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की कैंडिडेट्स चाहिए. देन वी हैव कोर ऑफ सिग्नल्स में हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेलीकॉम इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स चाहिए. देन वी हैव BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमें प्रेफरेबली हमारा प्रेफर ये होगी अगर आपने उसमें मास्टर्स किया हो. देन अनदर कोर इज आर्मी सर्विसेज. इसमें इनको इस दफ़ा POL इंजीनियर एंड POL पाइपलाइन इंस्टॉलमेंट्स के इंजीनियर्स चाहिए एंड केमिकल इंजीनियरिंग. सो सर्विसेज कोर में वी वांट इंजीनियर विद दिस बैकग्राउंड. देन वी हैव ऑर्डिनेंस कोर में MBA supply chain management and BE electronics. These two specific education qualification candidates can apply. जो इस आपने qualification इन दो चीज़ों में की हुई है, either you're an MBA in supply chain or BE electronics, you're eligible to apply in ordnance corps. Next is core of electrical and mechanical engineers, EMEs को कहते हैं. इसमें इनको ये इन टेक्नोलॉजीज के लोग चाहिए. कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, बायोमेड, मैकेनिकल, MTS और एरोस्पेस. सो दीज आर समथिंग दे रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. देन वी हैव आर्मी एजुकेशन को. नाउ दिस इज समथिंग बहुत से लोग इसके बारे में बहुत क्यूरीज आ रही होती हैं कि बिकॉज दिस ईयर दे आर नॉट ऑफरिंग इन मैनेजमेंट साइंसेस. मैनेजमेंट साइंसेस का इनका जो कोटा है वो हर साल नहीं आता एजुकेशन कोर में. दिस इज जिस तरह अगर मैं बात करूँ पुराने LCC में, बिकॉज दिस टाइम दिस इज 18, सिर्फ 14 में आया था, 13 में आया था, देन 15 में भी आया था.
So again, depending on the requirement, depending on the need, they have this. और this the main dilemma, the main thing जो बहुत से लोग नहीं बताते, एजुकेशन कोर में सबसे कम सीट्स होती है. लाइक अगर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कोर, एजुकेशन कोर में हार्डली 1 या 2, ज्यादातर 1 होती है, ज्यादातर. Just adding on the information. Okay, education core में they want biology, this year Islamic studies, Arabic, statistics. और अगर आपने statistics पढ़ा हुआ है तो preferably MPhil या MPhil होना चाहिए. Then we have another core that is remote veterinary and farm core. So again, if you have done from any agricultural university and you are registered with PVMC, so you're eligible to apply. Then we have computer and communication technology officers. For this particular post, they require BS software engineering and BS computer engineering, computer sciences. Like this background students can apply. Then we have direct short service commission as PRO, public relation officer. So this is something जो पहले ऑफर नहीं होता था. वही वाली बात है कि हर साल हर बैच में डिफरेंट चीज़ें ऑफर की जाती हैं. जिस तरह अब LCC 18 में ये चीज़ ऑफर हुई है, कभी हो सकता है 14 में ना हुई हो, 13 में ना हुई हो, 15 में ना हुई हो, बट नाउ दिस ईयर दे आर ऑफरिंग दिस एज वेल. सो उसमें उनको MS Mass Communication, MAIR, that is International Relations, MSc TV and Film Production में candidates चाहिए. Then we have direct short service commission as psychologist. MSc psychology चाहिए इसके अंदर. Like if you want to apply in Pakistan Army as a psychologist, you need to study psychology in this. All right, so these were few of the categories जो इस साल ऑफर हुई हैं इन कोर्स में. Now what are the ineligibility conditions? Like कौन सी conditions पे आप ineligible बन जाते हो कि आप नहीं अप्लाई कर सकते? Now these are few of the conditions. A candidate attaining specific higher education is eligible even she is rejected, twice rejected by SSB for graduate or okay, अगर आप 2 दफा रिजेक्ट हुए हो ISSB से या नेवल या PF कोर्सेज से, तो आप तीसरी दफा अप्लाई कर सकते हो बिकॉज आपके पास तीसरा ये लास्ट चांस है. इवन आप 2 दफा ISSB या किसी भी अगर आपने पाकिस्तान नेवी में या पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया हुआ है, आप उधर से भी रिजेक्ट हुए हो, तो कंबाइन आपके पास 3 होते हैं चांसेस. Candidate once rejected by PMA or equivalent course and once rejected in postgraduate entry can avail once more chance for postgraduate courses only. अगर आप PMA से या किसी भी उसके equivalent courses से रिजेक्ट हुए हो तो आपके पास एक और चांस है, एक लास्ट चांस है, तो आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो. Okay, permanent declare unfit by appeal medical board. So definitely you are ineligible. Declared medically unfit due to hepatitis B and C. Appeal medical board cannot be requested. अगर आपका hepatitis B या C है तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि medically unfit. Declared unfit by any armed forces hospital except those cleared by medical appeal board. अगर आपको किसी हमारे आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल ने रिजेक्ट किया हुआ है या आपको डिक्लेयर्ड अनफिट किया हुआ है, सो आप इनएलिजिबल बन जाते हो. विड्रॉन फ्रॉम एनी अकेडमी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड की बेसिस पे, लाइक ऑन एनी ग्राउंड बेसिस, आइदर यू आर लाइक रेस्ट्रिकेटेड और आइदर यू आर लाइक withdrawn from the academy, so you become ineligible. Withdrawn from any bonded Pakistan Army college institution on disciplinary grounds. अगर आपका कोई बिहेवियरल इशू, कोई डिसिप्लिनरी इशू हो, आपने कुछ भी किया हो और आप किसी भी आर्मी के इंस्टीट्यूट से, किसी भी आपने आर्मी के अकेडमी कॉलेज से निकाले गए हो, you become ineligible. Dismissed, removed, debarred from Pakistan government services including armed services.
आर्म फोर्सेस. सो दिस मीन्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग जॉब और मुझे किसी भी वजह से निकाला गया हो या रिमूव किया गया हो या मना किया कि किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में मैं काम पहले कर रहा था, तो आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई नहीं कर सकते. Convicted in a court of law for an offense involving moral turpitude. Now, moral turpitude means अगर आप किसी भी वजह से लाइक इखलाकी तलखी या इखलाकी लाइक हमारे इखलाकियात में अगर आपने कोई चीज़ गलत काम किया हो, लाइक ऑन इंटेंशनली मैंने कोई गलत काम किया, इंटेंशनली मैंने सोचा हो कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और आप इस वजह से आपने कोर्ट लॉ या आपको पे कोई चार्ज लगा या आपको जिस तरह कोई आपको मे बी पेनल्टी लगी, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. सो दीज वर फ्यू ऑफ द कंडीशंस जिसमें आप इनएलिजिबल हो जाते हो आर्म फोर्सेस में या नेवी में या पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए. ओके, नाउ कम्स द मेन, जो सबसे अच्छा जो कहते हैं लाइक इंटरेस्टिंग और द मेन पार्ट ऑफ दिस, हाउ टू गेट रजिस्टर्ड एंड व्हाट टू डू एट दिस preliminary selection procedures. Number one, either you can register through internet. अगर आपके पास इंटरनेट है तो इंटरनेट पे जाके सर्च करके आप रजिस्टर कर सकते हो, और अगर आप फिजिकली जाना चाहते हो तो फिजिकली आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स, ASNRC कहते हैं इनको, इन शहरों में ये बने हुए हैं: पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची और कोयटा. अगर आप किसी और शहर में रहते हो, किसी और जगह पे रहते हो, इन जो मैंने जिन शहरों का नाम लिया इन शहरों में से किसी शहर में नहीं रहते, या तो आप इंटरनेट के थ्रू अप्लाई करो. दैट्स द बेस्ट वे. अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इंटरनेट नहीं, मुझे जाना है, तो फिर जो भी करीबी लोकेशन, लाइक फॉर एग्जांपल आप मे बी यूर लिविंग एट गुजरांवाला, तो आपको गुजरांवाला से लाहौर ज़्यादा करीब पड़ेगा, तो आप लाहौर जाके अप्लाई कर दो आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर. ओके, नाउ मैं अभी थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगी कि आपने इंटरनेट के थ्रू कैसे रजिस्टर कराना होता है. दैट्स रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट. तो सबसे पहले आपने www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट को खोलना है. जब इस वेबसाइट पे खोलोगे तो एक पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा. उसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी, आपकी आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स होंगी, आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी सारी आपने मेंशन करनी है. जब आपको वो फॉर्म फिल हो जाएगा, आपको ईमेल के थ्रू वो आपको बताएंगे, इंटीमेट करेंगे कि आपने कहाँ और कब और किस डेट को टेस्ट देने आना है. जिन लोग जो सेलेक्ट हो जाते हैं इसमें लाइक इस शॉर्ट लिस्टिंग में, बिकॉज ये प्रिलिमिनरी सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो आपको ईमेल आती है टाइमिंग्स की, डेट की, और आपको एक रोल नंबर स्लिप भी साथ आ जाता है. एक दफ़ा जब आपका रोल नंबर स्लिप आ गया और आपको बता दिया गया कि ये दिन होगा, ये टाइम पे आपने यहाँ रिपोर्ट करना है ASNRC में, वो डेट चेंज नहीं हो सकती. अगर मुझे कोई मसला है उस डेट से, या मैं कह रहा हूँ ये भाई नहीं आज तो मैं नहीं आ सकती भाई, या आज मुझे कहीं और भी जाना था, या आज मेरी कोई और कमिटमेंट थी, सो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. यू कुड नॉट अप्लाई फॉर डेट चेंज. आप डेट चेंज नहीं कर सकते. एक दफ़ा उन्होंने आपको डेट दे दी, if you are really passionate, go for that. Candidates will also bring along all documents mentioned in next slide. I'll mentioning the slide. मैं बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और वहाँ जाके आपको प्रोस्पेक्टस फी भी देनी होती है टेस्ट वाले. सो टेक ऑल योर आपकी जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आई विल गाइड यू इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स में कि किस तरह आपने सारा लेके जाना है. सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, और आपको एक आई गेस पहले उस टाइम पे तो आई गेस 2000 थी या समथिंग, दैट्स द प्रोस्पेक्टस फी, या 1500 समथिंग, लाइक इसी रेंज में ही है प्रोस्पेक्टस फी. बट डू कीप एटलीस्ट 3000 तक पैसे अपने पास रखो. ओके, ऑल्सो जब आपके पास रोल नंबर स्लिप आएगी उस पर भी मेंशन होगा कि कितना अमाउंट है. यस,
Okay. Then we have candidates. Candidates must attain working knowledge of computer as registration and tests will be conducted on computers. डेफिनेटली आपको कंप्यूटर नो हाउ होनी चाहिए, आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज आपके पास जहाँ ASRC में आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, उसमें MCQs होते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ करूंगी इसको आगे, बट आपको कंप्यूटर चलाने की नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप टेस्ट में वहाँ पे अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकोगे। नाउ द रजिस्ट्रेशन एट ASNRC आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स में कैसे करनी है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपने कहा मैं विजिट करना चाह रहा हूँ, तो आप किसी भी नियरेस्ट ASRC जाओ, वहाँ पे रजिस्टर कराओ। अब वहाँ वो आपको एक अलॉट कर देंगे रोल नंबर, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे सबमिट कराने होंगे, और प्रोस्पेक्टस फी देनी होगी। ओके, और फिर आपको वो इसी तरह टेस्ट के लिए कॉल आउट किया जाएगा। सो द सेम प्रोसीजर गोज फॉर बोथ, आइदर यू आर डूइंग थ्रू इंटरनेट और यू आर डूइंग गोइंग टू दिस ASRCs। अगर आप फिजिकली विजिट करना चाह रहे हो या आप ऑनलाइन कराना चाह रहे हो, तो दोनों में तकरीबन प्रोसीजर इज सेम। जिस तरह मैंने पहले कहा, जो इस ASRC को जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद जो उसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे, उनको एक टाइमिंग्स और डेट की ईमेल आ जाएगी कि आपने इस दिन इस डेट को इस टाइम को रिपोर्ट करना है आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में। वहाँ जाके अब क्या होगा, सबसे पहले वो आपका रिटर्न और इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे। ये बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है, इसमें MCQs बेस्ड ये टेस्ट होता है, डिफरेंट MCQs होते हैं, समथिंग रिलेटेड टू योर ओन एजुकेशन, IQ से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, मे बी हमारे पास जो बाकी इंटेलिजेंस टेस्ट में जिस तरह आपने कहा कह दूँ मैं कि ब्लैंक्स होती हैं। आई गाइड यू, मैं इसके बारे में और बात करूंगी कि टेस्ट किस किस्म का होता है, बट लेकिन दिस टेस्ट इज रियली वेरी इजी, रियली इजी। लाइक अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है ना, कुड इजीली एज दैट, आप आसानी से कर सकते हो। ओके, फिर प्रिलिमिनरी आप जब टेस्ट दे के बाहर निकलते हैं, तो उसी टाइम आपका एक इनिशियल मेडिकल होता है, ASRC में ही वो होता है। वो क्या करते हैं, आपका चेक करते हैं, आपकी आईसाइट चेक करते हैं, वो आपका हाइट, वेट, ये बॉडी में क्योंकि BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो आपका वो चेक करते हैं। देन वो चेक करते हैं, मतलब बेसिक बिल्कुल ये 2-3 चीज़ें ही वहाँ पे उस टाइम पे चेक की जाती हैं कि लाइक आपका जो हाइट है, वेट है, वो सही है आपका। हो सकता है अब बहुत दफ़ा एयर्स चेक कर लेते हैं, ENT स्पेशलिस्ट वहाँ अवेलेबल होता है, एयर्स ठीक है आपके, आईसाइट ठीक है, अच्छा ठीक है, और तो कोई बीमारी नहीं, वक्त आपसे फिर भी पूछ लेते हैं, नी नॉकिंग तो नहीं हो रही। सो ऑल दीज थिंग्स लाइक इनिशियली मेडिकल में पूछी जाती हैं। अच्छा, डिफरेंट दफ़ा में जिस तरह ज़्यादातर, लेकिन 2-3 चीज़ें जो लाजमी होंगी, हाइट करवाएंगे, वेट आपसे पूछेंगे, आप वो चेक करेंगे, आपका आईसाइट चेक करेंगे, ENT स्पेशलिस्ट है तो आपका वो चेक करेगा, एयर चेक करेगा। सो ऑल दीज बेसिक थिंग्स आर बीइंग डन। कोई बहुत वो कोई उस तरह का टेस्ट नहीं होता, दिस इज वेरी इनिशियल टेस्ट। ओके, देन दोज हु हैव लाइक, जो उस टाइम इनिशियल देने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो मेडिकल हो गया, देन दे गिव यू अ डेट। वो आपको फिर से एक डेट देंगे और फिर से बताएंगे कि आपने फीमेल्स कैंडिडेट्स ने 1.6 किलोमीटर भागना है 14 मिनट में। अगर आप 14 मिनट में 1.6 किलोमीटर कर लोगे तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेज। तो आपके मेडिकल के बाद वो आपको एक जगह बता देते हैं कि आपने इस दिन, फॉर एग्जांपल इन माय केस, बिकॉज मैं कराची से अप्लाई किया था, मैंने जब मैंने कराची से अप्लाई किया था तो मेरा जो इनिशियल ASRC कराची में ही हुआ था, जहाँ के मैंने टेस्ट दिया। आई एम जस्ट शेयरिंग माई लिटिल बिट एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे फिर उन्होंने, जब मैं टेस्ट दे के बाहर निकली, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा इधर आ जाए। मेरा पहले वो बॉडी BMI चेक किया उन्होंने, दैट मीन्स के वेट किया, हाइट की, आईसाइट चेक की, ENT स्पेशलिस्ट वहाँ अवेलेबल था, उसने मेरे एयर चेक किए,
उसने नी नॉकिंग लाइक आपकी नीज वो चेक की, दैट्स इट, लाइक बिल्कुल बेसिक। देन ही सेड के आपने आगे चले जाए, वहां से फिर दोबारा आपको पूरे डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो फिल करवाए उन्होंने, एंड देन दे अगर आपको वो बता देते हैं कि आपने इस जगह पे पहुंचना है। आपका लाइक फॉर एग्जांपल इन माय केस वो पोलो ग्राउंड था, आपने उधर पहुंचना है सुबह 7 बजे, 7 o'clock sharp, 6:37 around 6:30 45 7 was the time. So I reached over there. So they were जो भी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट बैचेस में एएसआरसी में अप्लाई करके टेस्ट दे रहे होते हैं, तकरीबन वहाँ पे सारे आए होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स। सो व्हाट दे डू, वो आपको एक जगह खड़ा कर देते हैं एंड देन लाइक जिस तरह एक पोलो ग्राउंड की तरह यू हैव टू रन। सो 1.6 किलोमीटर में अगर आप 14 मिनट में, बिकॉज दे डू हैव द स्टॉप वॉच, वो चेक कर रहे होते हैं, इससे ओके फाइन रन। जो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली दिस इज इनिशियल वन, या यू हैव बीन क्वालिफाइड। जब ये क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद इन तीनों चीज़ों के बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी मेडिकल एंड प्रिलिमिनरी आपका जो फिजिकल टेस्ट हुआ था, अगर आप तीनों चीज़ें क्लियर कर लेते हो, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है उनको इंटीमेशन आती है आईएसएसबी की टेस्ट की, वेबसाइट पे भी आ जाता है और आपके घर कॉल लेटर भी आएगा आपकी स्पेसिफिक रेजिडेंशियल एड्रेस पे जो आपने मेंशन किया था फॉर्म के ऊपर। इस बारे में भी बहुत ख्याल रखना है कि एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक हो। सो यू बिकम एलिजिबल, शॉर्टलिस्ट हो गए हो। अगेन अ वेरी बिग ड्रीम, एटलीस्ट आईएसएसबी तक तो जाऊँ ना, प्रिलिमिनरी के आईएसएसबी तो हो। देन द नेक्स्ट वीक जब वही बात है, हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे ना तो हमारे बड़े कदम की तरफ हम जा सकेंगे। सो ईच एंड एवरी प्रोसीजर स्टार्टिंग विद प्रिलिमिनरी टेस्ट से लेके आईएसएसबी से लेके आईएसएसबी के बाद की जो जर्नी है, एवरी स्टेप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दैट। आईएसएसबी के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, आई विल बी ब्रीफिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो। डू वॉच माई वीडियोज बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो मैंने इन वीडियोज के दरमियान में बताई, इफ यू हैव नॉट वॉच द होल वीडियो so you have missed those points. Secondly, माशाल्लाह those who have been shortlisted, उनके लिए क्या नई जर्नी है, क्या चीज़ें होंगी, I will be explaining that as well. अभी के लिए I just have मैं फिर से recap कर दूं, I have just explained that what is preliminary criteria and procedure for applying and how you can apply for that. Thank you so much for watching. Do like and subscribe. Take care. Best of luck.